सिटी विजन के सभी दर्शकों को हमारी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने कहा वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। मंत्री ने बेगमपेट में आईटीसी काकतीय होटल में सीआईआई की वार्षिक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले संगठनों को सीआईआई पुरस्कार प्रदान किए। हाल ही में बायो एशिया सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। दुनिया की 15% वैक्सीन हैदराबाद में सप्लाई हो रही है। केटीआर ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हमारे डिवाइसेस पार्क में है। उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है जो ड्रोन के जरिए दवाइयां भेजता है। यह हमारा स्टार्टअप है जिसने देश में पहला निजी रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा। उन्होंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा हब हैदराबाद में है। Yes, quickly, I'm sure you've been following what all has been happening in Telangana in the last few weeks, few months, couple of months in fact, and some very, very interesting and exciting things happening. We just concluded BioAsia, which is one of Asia's largest premier events, and some very exciting things have unfolded there. In fact, back in 2021, in the midst of the pandemic, we had conducted BioAsia in a virtual mode. And we made a commitment to ourselves that the current ecosystem valuation back then, 2021, of life sciences industry in Telangana and Hyderabad, and Telangana, not Hyderabad alone, but Telangana, was about $50 billion, and we'll double it by 2030, was what the ambition that we had set for ourselves. But you know, what happened sometimes, you know, is really good. From 50 billion in 2020, we actually went to 80 billion in 2022. So a 30 billion increase in just about two and a half years, which was a huge surprise for us as well. Because I think after the pandemic, the world has realized that we need to invest more in healthcare, we need to invest more in life sciences, we need to ensure that this brilliant industry which saves lives needs to be focused on. So therefore, governments across the world, I think institutions across the world, individuals across the world have started investing more and more in life sciences, and therefore the valuation just jumped from 50 to 80 billion in a span of 2.5 years. So we had the good challenge of resetting our target, because you know the 100 billion target that we had set for ourselves by 2030, we are now going to be shooting it through in 2025, 5 years ahead of schedule. So therefore we said, okay, now let's actually challenge ourselves more. सुचित्रा एमडी भारत बायोटेक ने कहा टी हब अद्भुत नवाचारों के लिए एक मंच बन गया है। सीआईआई तेलंगाना को निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में बढ़ावा दे रहा है। हमें यह कहते हुए गर्व होगा हम टीकों की राजधानी हैदराबाद से है। काइटेक्स के सीएमडी जेकब ने कहा जिस तरह से तेलंगाना सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया है वह अद्भुत है। राज्य में 8000 लोगों के लिए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। केटीआर को मंत्री के रूप में पाकर तेलंगाना को गर्व महसूस हो रहा है। Path-breaking initiatives of the government, Telangana has emerged as a front runner on the socio-economic development index of the country. SIA has been working with the state government on many initiatives focusing on inclusive growth and sustainable development. The recently launched Mobility Next Hyderabad Summit is one such initiative which focused on sustainable mobility. I can't imagine if the minister and Jayesh Ranjan Garu both could keep a tab on the number of events that they have the time and energy to be present and motivate and initiate in the state of Telangana. This is great leadership for all of us. The CII Center for Excellence for Innovation and Entrepreneurship and Startup is set up in Hyderabad with the support of the state government and aims to nurture entrepreneurs and promote the growth of startups, thereby ensuring inclusive growth. CII works closely with the government of Telangana in this regard as well. शहर भर में लोगों ने धूमधाम से होली मनाई है। मंत्री तलसानी और जीएचएमसी के डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने इंदिरा पार्क में आयोजित होली समारोह में भाग लिया। मंत्री तलसानी ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस साल होली 2 दिन की आई है। उन्होंने कहा भारत के त्योहार बहुत महान हैं। हमारे त्योहार हिंदू परंपराओं और धार्मिक सिद्धांतों के प्रतीक है। उन्होंने त्योहारों के माध्यम से अपनी संस्कृति और परंपराओं को सार्वभौम बनाने का आह्वान किया
तलसानी ने कहा, तेलंगाना के बाद हैदराबाद शहर काफी तरक्की कर रहा है। मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी मैसम्मा गुड़ी में होली का जश्न जोरों पर है। मल्लारेड्डी विश्वविद्यालय के छात्रों ने रंग उड़ाकर उत्साहपूर्वक समारोह में भाग लिया। एमएलसी कविता ने इन समारोह में शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में एमएलसी कल्वकुंटला कविता शामिल हुए। विद्यार्थियों के साथ होली मिलन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों के साथ कुछ देर डांस किया और उनका हौसला बढ़ाया। बाद में छात्रों ने रंग लगाया और हुड़दंग मचाया। कॉलेज परिसर खेलों से गुलजार रहा। उन्होंने डीजे गानों पर डांस किया और रंग उड़ाकर खुशी का इजहार किया। बेगम बाजार में होली की धूम रही। राजस्थान समाज से जुड़े परिवारों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर होली का त्योहार धूमधाम से मनाया। गौवत्स फाउंडेशन बेगम बाजार प्रभात परिवार ने संयुक्त रूप से समारोह का आयोजन किया। उत्सव में युवा और वृद्ध सभी ने उत्साहपूर्वक नृत्य और गायन किया। परिवार के सदस्यों ने रंग छिड़क कर जश्न मनाया। स्थानीय राजस्थानियों ने गीत गाकर होली खेली। महिलाओं ने विशेष नृत्य पेश कर खुशी मनाई। राजस्थान समाज के प्रतिनिधियों ने कामना की कि सभी लोगों का जीवन रंगीन हो। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का मकसद आम आदमी के लिए दवा और दवा की कीमत कम करना है। पंजागुट्टा के निम्स अस्पताल में आयोजित जन औषधि दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले किशन रेड्डी ने तेलंगाना में सबसे ज्यादा बिक्री वालों को पुरस्कार प्रदान किए। किशन रेड्डी ने कहा, हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र ने कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य गरीब, पिछड़े वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, शुरू में प्रति जिला केंद्र कम से कम एक जन औषधि केंद्र रखने के संकल्प के साथ शुरुआत की। फिर केंद्र ने फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से इनकी संख्या में व्यापक रूप से वृद्धि की। वर्ष 2017 में 3000 जन औषधि केंद्र थे। इस साल फरवरी के अंत तक देश में 9177 जन औषधि केंद्र थे। जेनेरिक मेडिकल स्टोर का दौरा करने वाले किशन रेड्डी ने स्टोर के मालिक से बात की और विवरण जाना। उसके बाद 200 रुपए की आइसोसार्बाइट दवा बाहर मेडिकल में मात्र 21 रुपए में खरीद कर फोन पे से भुगतान किया। तेलंगाना राज्य इंटक अध्यक्ष और एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव प्रभारी मिद्देला जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वे विरोध कर रहे हैं एलबी नगर चौक में पुलों के उद्घाटन में काफी समय से देरी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के तत्वावधान में आयोजित धरना इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि स्थानीय विधायक काम में देरी कर रहे हैं। इसके साथ ही मिद्देला जितेंद्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन ले गई। मिद्देला जितेंद्र ने कहा, राज्य सरकार लगभग 10 वर्षों से पुलों का निर्माण कर रही है और उन्हें लोगों के लिए सुलभ बनाने की उपेक्षा कर रहे हैं। भाजपा मंगलहाट कॉर्पोरेटर शशिकला के बेटे अखिल ने हड़कंप मचा दिया। रविवार की रात हुई इस घटना का खुलासा देर रात को हुआ। सिकंदराबाद छावनी चुनाव अधिसूचना को वापस लेने की याचिका पर विचार नहीं करने को चुनौती देते हुए छावनी विकास मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के छावनी बोर्ड ने याचिका पर सुनवाई की और रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया। आगे की सुनवाई के लिए इस महीने के 21 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विकास मंच के सदस्यों ने कहा, उनका समाज छावनी विकास के लिए जीएचएमसी में आम लोगों के रहने वाले इलाके को मिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव अधिसूचना 17 फरवरी को जारी की गई थी, जबकि इस संबंध में प्रस्ताव बनाए जा रहे थे। छावनी अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार ने अप्रैल में सिकंदराबाद सहित 57 छावनी बोर्डों के लिए आम चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं और इसके विपरीत 17 फरवरी को सिकंदराबाद छावनी के लिए चुनाव अधिसूचना जारी करना कानून के अनुसार अवैध है। उन्होंने कहा, नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया जारी नहीं रखी गई और करीब 30,000 मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने चुनाव स्थगित करने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की। केंद्रीय रक्षा विभाग और छावनी बोर्ड को उत्तरदाताओं के रूप में शामिल किया गया। जीएचएमसी में पिछले साल दिसंबर से जारी किए गए सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जीएचएमसी ने करीब 41,000 सर्टिफिकेट रद्द किए। इनमें 27,228 जन्म प्रमाण पत्र और 4,126 मृत्यु प्रमाण पत्र है।
इसने उचित जांच के बिना जारी किए गए हजारों जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों को अमान्य कर दिया है। मेहंदीपट्टनम, चारमीनार, फलकनुमा, बेगमपेट और सिकंदराबाद सर्कल में बड़े पैमाने पर इस तरह के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। जीएचएमसी के अधिकारी आरोप लगा रहे हैं, आपके सेवा केंद्र अनियमितताएं कर रहे हैं। ऐसा लगता है बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र बिना आरडीओ सत्यापन के जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा, मार्च और दिसंबर 2022 के बीच 27,000 जीएचएमसी जन्म प्रमाण पत्र और 4,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। मेहंदीपट्टनम में इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट बड़ी संख्या में मिले। घेरे में 5,877 जीएचएमसी जन्म प्रमाण पत्र और 240 मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। चारमीनार सर्कल में 3,949 जन्म और 249 मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जबकि चारमीनार सर्कल में 1,839 जन्म और 220 मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। विधायक राजा सिंह ने फर्जी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। आरोप है एमआईएम पार्टी इस घोटाले में शामिल है। उन्होंने आशंका जताई, पुराने शहर में ही और भी जन्म प्रमाण पत्र है, आतंकी भी हो सकते हैं। राजा सिंह का आरोप है 27,000 जन्म प्रमाण पत्र सभी पुराने शहर के भीतर है। एमआईएम नेताओं ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा, ये प्रमाण पत्र पाने वाले में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं। उन्होंने यह पता लगाने की मांग की है कि असली आतंकवादी कौन है। वे न केवल इन फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की गणना करना चाहते हैं, बल्कि यह भी देखना चाहते हैं कितने मतदाता और राशन कार्ड है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक और अहम घटनाक्रम हुआ है। कई अहम लोगों को पहले ही हिरासत में ले चुकी जांच एजेंसियों ने हाल ही में एक और अहम शख्स को हिरासत में लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को ईडी ने सोमवार रात हिरासत में ले लिया है। इंडियन स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया फेयरवेल मैच रविवार को आयोजित किए गए। डिनर एक निजी होटल में आयोजित किया गया। हालांकि सानिया के पति शोएब मलिक बहस का विषय बन गए हैं। मूल रूप से शोएब कहां है? मेघा इंजीनियरिंग कंपनी की ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड ने टीएसआरटीसी के साथ एक अहम अनुबंध किया है। टीएसआरटीसी ने उस कंपनी को 1,000 करोड़ रुपए की 550 इलेक्ट्रॉनिक बसों का ऑर्डर दिया है। इसमें 50 इंटरसिटी और 500 इंट्रासिटी बसें हैं। इंटरबोर्ड ने नारसिंगी स्थित श्री चैतन्य कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। अगले शैक्षणिक वर्ष में पहले से ज्यादा दाखिले पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने इंटर के छात्र सात्विक के सुसाइड नोट के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि जांच रिपोर्ट, एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज की मान्यता रद्द की जा रही है। सरकार हैदराबाद महानगर में पैदल यात्री सुरक्षा के लिए प्राथमिकता प्राप्त कर रही है। एचएमडीए सबसे बड़े चौरस्ता उप्पल सर्कल में से एक में स्काई वॉक का निर्माण कर रहा है। यह आकाश जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ बनाया जा रहा है, अंतिम चरण में पहुंच गया है। स्काई वॉक कुछ दिनों में उपलब्ध होगा। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी इलाके में हैवानियत की घटना हुई। पेट्रोल के पैसे मांगने पर 3 युवकों ने एक बंक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी। घटना जनवाड़ा स्थित एचपी पेट्रोल बंक पर हुई है। सरकार ने आदेश जारी कर अब से साल भर आम जनता को राष्ट्रपति आवास बोलारम सिकंदराबाद में आने की अनुमति दी है। उगादी पर्व के सम्मान में इस महीने की 22 तारीख को राष्ट्रपति आवास खोला जाएगा। उसी दिन से इस साल लोगों को यहां आने का मौका मिला है।